انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب لاہور سے 2 گھنٹے یہاں گجرانوالہ میں پہنچتے ہوئے لگیں گے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں، بے چینیاں، اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے، اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا، تو اب تو یہ کام بھی میرے ذمے ہے، تو مجھے یاد آ گیا ہوتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین
खातमुल अंबिया, महबूब खुदा इस महीने के लिए मुंतज़िर रहते, ये महीना आने वाला है, ये महीना आने वाला है। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख़ को हुजूर ने एक खुतबा इरशाद किया। बाज़ उलमा ने कहा कि ये शाबान का आखिरी जुमा था, या हो सकता है कि आखिरी जुमा 29 शाबान को ही हो। तो रमज़ानुल मुबारक से क़बल हुजूर ने ये खुतबा इरशाद किया, जो मुख्तलिफ़ कुतुब अहादीस में मौजूद है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक बहुत पाकीज़ा पुरनूर आली मर्तबत महीना साया फिगन कर दिया है। शहरुन फ़ीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहर, उस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जालल्लाहु सियामहु फरीदा व क़याम लैलतिन ततव्वुआ, उस महीने के दिन के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए और रातों का क़याम नफल बनाया गया। तावी की सूरत के अंदर रातों के क़याम का माहौल पैदा होता है, सलातुल लैल पढ़ी जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं कसरत के साथ। ये उस महीने की शानें हैं, ये उस महीने की रौनकें हैं। उस महीने में अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजियाँ अता की हैं अहले ईमान को। वमन तक़र्रबा फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल खैर कान कमन अद्दा फ़रीदतन फ़ीमा सवाहु, एक नफल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर इस महीने में कर दिया जाता है। अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। इस कदर नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है इस महीने में। और फिर इरशाद फरमाया, ये सब्र का महीना है, होने के बावजूद भी इंसान नावुल नहीं करता। ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और ज़ुबान कांटा बन गई, हल खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। वज़ू करते भी एहतियात करता है, कोई कतरा आब हलक से नीचे न टपक जाए। तो ये सब्र सिखाता है। जब हो भी तो इंसान उससे गुरेज करे, तो जब होगा नहीं तो फिर इंसान सब्र का आदी बन जाता है। तो ये सब्र की आदत डालता है, ये शहरुस सब्र है। फिर फरमाया, सब्र का सवाब जन्नत है। जो शख्स साबिर होता है उसका सिला जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा। व शहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है, उल्फतें बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है, बिलखुसूस उमरा, कि भूख क्या बला होती है। और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी तल्ख होती हैं। भूख और प्यास एहसास पैदा करती हैं उन लोगों का कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से महरूम हैं। तो इसलिए ये एक किस्म का रहम दिली का महीना है, प्यार बांटने का महीना है, ये उल्फतें तकसीम करने का महीना है। व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, और ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा खाना बचाने के लिए, ये अखराजात कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपका रिज़्क़ और बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी नेमतें खाने को उन लोगों को भी नसीब हो जाती हैं आम दिनों में जो उनका मकसूम नहीं होती। दस्तरखान लगते हैं, इफ्तारियाँ होती हैं, सहरी के लम्हात होते हैं। कोई किसी को वैसे खाना खिलाए तो उस दस्तरखान पे खाने के लिए आना उसका और रंग होता है। लेकिन इफ्तार का दस्तरखान जब बिछता है और लोग जब उसके ऊपर आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमतें जो दस्तरखान पे पड़ी होती हैं उनको उठाते हैं, कामो दहन की तस्कीन का सामान करते हैं। इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। और सारा दिन
ठंडे माहौल में रहा हूँ और मुझे तौफीक नहीं मिली, तो वो घूंट कितने मुश्किल उसके लिए होते होंगे। और रोज़ादार के लिए किस कदर वो आसूदा बख्श लम्हे होते हैं कि जब उसको ये मुसरत हो रही होती है कि मालिक तेरा शुक्र, गर्म मौसम, ज़ुबान कांटा, हल खुश्क, और तूने तकमील तक लम्हे पहुँचाए और मेरा दिन खैरियत से गुजर गया, तो वो उसके लिए एक खुशी का लम्हा, रूहानी मुसरत की कैफियत। और दूसरी कि जब वो ठंडा और मीठा मशरूब, सारे दिन की सूखी हुई ज़ुबान और खुश्क हलक, और इंसान की जो है वो रगें भी, अंतड़ियाँ भी खुश्क हो चुकी होती हैं, तो ठंडा और मीठा मशरूब जब इंसान के मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, ज़ुबान बोले ना बोले, एक एक रुआं अल्लाह की हम्द बोल रहा होता है, और तशक्कुर इंसान के रगो रेशा से अदा हो रहा होता है, और उसकी कैफियत, उसकी सरशारियाँ, उसकी लज्जतें वो देखने की होती हैं। तो कहा लिस्साए में फ़रहतान, रोज़ेदार को तो एक फ़रहत उस वक्त मिलती है इंदा फित्र ही, जब वो रोज़ा खोलता है, रूहानी फ़रहत भी, जिस्मानी फ़रहत भी। व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे, और दूसरी फ़रहत और दूसरी खुशी उसे तब मिलेगी जब इस रोज़े के सिले में अल्लाह ताला अपने रुख़ अनवर से पर्दा उठा देगा और रोज़ादार को अपने दीदार की दौलत अता करेगा। तो वो फिर मंजर देखने वाला होगा, रोज़ादार की आंखें ठंडी हो जाएंगी। असल इफ्तार तो वो होगी ना, अल्लाह अकबर, असल तो शरबत दीदार मिलेगा जो रूह की प्यास बुझा देगा, जो मन की भूख मिटा देगा। तो कहा लिस्साए में फ़रहतान, फ़रहतुन इंदा फित्र ही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी वो है जब उसके जिस्म की प्यास बुझती है, और एक खुशी तब मिलेगी जब रूह की भूख मिटेगी। जिसने रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया, काना मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, तो वो इफ्तार करवाने वालों के गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। ये इफ्तारी गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब बन जाएगी। व इत्क़ा रक़बतिही मिनन्नार, और आतशे दोज़ख से गर्दन की आज़ादी का मुजदा जाँ फ़िज़ा बन जाएगा ये अमर कि उसने किसी का रोज़ा इफ्तार करवाया। व कान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैर अन यनक़ुसा मिन अजरिही शै, और रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को रोज़ा रखने वाले जितना अजर ही दिया जाएगा, लेकिन रोज़ा रखने वाले के अजर में भी कोई कमी नहीं वाक़या होगी। जितना उसने सारे दिन की भूख और प्यास काट करके, तकलीफ़ उठा करके रोज़ा रखा, जिसने शाम को उसको इफ्तार कर दिया, उतना ही सवाब उसको अता कर दिया जाएगा, उसका अजर कम किए बगैर। अल्लाह अकबर, ये उम्मत के लिए अल्लाह ने क्या पैकेज दिया है। अल्लाह से जन्नत तलब करो और दोज़ख से पनाह मांगो। तो ये दो काम जो तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इस महीने में कसरत के साथ करो। तो ये महीना रहमतों की लूट सेल का महीना है, ये करम नवाजियों के उमड़ते हुए धारे हैं, ये सैल रहमत है जो कि मन की सैराबी का सबब और ज़रिया है। खुश नसीब हैं जो माह सियाम को खूबसूरती के साथ बसर करते हैं, इसके आने से पहले इस्तक़बाल करते हैं, घरों में सफाई करें, एहतमाम करें, मसाजिद में एहतमाम करें, ताकि बच्चों में ये शौक़ पैदा हो कि माह सियाम आ रहा है। जब हम बच्चे थे तो हमारे वालिदैन रमज़ानुल मुबारक से कबल ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। उस वक़्त घर में शरबत तैयार हुआ करते थे गुड़ के, और वो पहले ही माएँ घर में तैयारी करना शुरू कर दिया करती थी। एक शौक़ पैदा करना मकसूद होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑर्डर लिखें और 1 सेकंड में घर पहुंच जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ये जो है वो तैयार करनी चाहिए, शौक़ पैदा हो। घरों के अंदर माँओं को चाहिए कि इफ्तारी को एहतमाम के साथ तैयार करें ताकि बच्चों को शौक़ पैदा हो और ये एक माहौल पैदा हो, कुरान मजीद की तिलावत का माहौल पैदा हो, जागने सोने के जो है वो शेड्यूल मुरतब किए जाएँ, मसाजिद की आबादी का सामान किया जाए। पिछले साल तो बड़ा उदास रमज़ान गुज़रा, इसलिए कि कोरोना के हवाले से जिस तरह मुल्की हालात थे वो आपके सामने थे। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हालात नहीं होंगे। कुछ SOPs को आपको फॉलो करना होगा, लेकिन मस्जिदों की इंशाअल्लाह रौनकें बहाल रहेंगी और सलात व तरावी और सहर व इफ्तार के लम्हे, नवाफल, तस्बीहात,
اذکار، نمازوں میں پنجگانہ حاضریاں، یہ کیسا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، انوار اتر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا خوبصورت لمحے ہوتے ہیں اور کیا گھڑیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ امسال مرکز مصطفیٰ کے اندر صلاۃ التراویح کے لیے خاص طور پہ ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ میری آرزو تھی کہ جب مرکز کی تکمیل ہو تو پھر رمضان المبارک کا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ہم انتظام و انصرام کیا کریں گے، چونکہ اس سے قبل بہت سارے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے ہم الجھے رہتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے اب مرحلہ اول کی تکمیل ہو گئی اور مرحلہ ثانی کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے بیٹھنے کی جگہ، خواتین کے لیے انتظام، افطار کے لیے، سحر کے لیے، دوستوں کے لیے انشاءاللہ خوبصورت اہتمام ہوگا۔ بہت اچھے قاری قرآن جو ہے وہ صلاۃ التراویح پڑھائیں گے، تو وہ میٹھے اور دل آویز لہجے اور مرکز کا ماحول، انشاءاللہ ذکر و فکر کے حلقے بھی ہوں گے، دروس قرآن کے حلقے بھی ہوں گے، تو ایک ماحول انشاءاللہ پیدا ہو، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ماہ صیام میں موجود رہوں گا، افطار کے لمحوں میں بھی، سحر کے لمحوں میں بھی، تراویح میں بھی، نمازوں میں بھی انشاءاللہ۔ اور پھر جب ہم ہوں گے تو ماہ صیام ہوگا، رحمت کی گھڑیاں ہوں گی، اترتے ہوئے انوار ہوں گے، محبتوں کا ہجوم ہوگا، افطار کے میلے ہوں گے، سحری کے خوشگوار لمحے ہوں گے۔